Good morning, students. In today's lecture, we are going to start with products of electrolysis of lead bromide. ठीक है? So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे what are the products formed by the electrolysis of lead bromide. So electrolysis of lead bromide is taking place. Here we have a container in which we have the solution of lead bromide. Two electrodes are there, immersed in the solution of lead bromide, and one of them is cathode, another one is anode. This electrode which connected with the positive terminal is known as anode. This electrode is anode. ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. दिस इज नोन एज कैथोड. And see, these two electrodes are dipped in lead bromide solution. यहाँ पे जो solution present है that is lead bromide PbBr2. Now during this process, see, lead bromide is present in solid state. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई भी करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, बट जब हम इस क्रूसिबल को हीट करेंगे, when we will heat this crucible, then lead bromide will melt. सबसे पहले क्या होगा, lead bromide solid state में था, बट हमें क्या करना है, हमें इस क्रूसिबल को हीट करना है, and upon heating what will happen, जो lead bromide है वो मेल्ट हो जाएगा. lead bromide जो है वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया. Now it will conduct electricity. ठीक है? So ordinarily lead bromide electricity conduct नहीं करेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, जिस क्रूसिबल में इसको ले रखा है उस क्रूसिबल को हीट करना पड़ेगा. Upon heating lead bromide will change into liquid state. ठीक है? जो lead bromide है वो किस physical state में change होगा, liquid state में change हो जाएगा. Now you can observe the reaction which will take place at anode. At anode, we have already studied at anode which process will take place, oxidation. And what is oxidation? Oxidation is loss of electrons. Oxidation is loss of electrons. See, now which species will lose electron? अगर हम इसकी आयनेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन से आयन्स होंगे, अब lead 2 पॉजिटिव होंगे, Br नेगेटिव आयन्स होंगे. ठीक है? So electron rich species will go here, that is Br negative species. It will lose electron and it will form Br2 molecule along with liberation of electrons. So 2 Br negative give rise to Br2 plus 2 electrons. Loss of electrons is taking place. Process is known as oxidation. ठीक है? Then add another electrode, add cathode. Add cathode. Now see, add cathode, which process will take place? Reduction. Add cathode, reduction will take place. And see, what is reduction? Reduction is gaining of electrons. Now which species will gain electrons? That is lead 2 positive. Lead 2 positive will gain 2 electrons and it will form lead solid. Okay? This is the reaction which is taking place in the reduction half, which is taking place at cathode. And here the overall redox reaction will be PbBr2. Electrons cancel out हो गए. It will give rise to Pb solid plus Br2. ठीक है? So this reaction will take place during the electrolysis of lead bromide. ठीक है? तो lead bromide की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास लेड बन रहा है और साथ में ब्रोमीन जो है वो लिबरेट हो रही है. ठीक है? आफ्टर दिस वी विल कैरी आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सी, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर विल आयनाइज इनटू H positive and OH negative ions. ठीक है?
When electricity is passed by using graphite electrode, then what will happen? Water will undergo ionization. It will form H positive and OH negative ions. Now, at anode, which process will take place? Oxidation. And what is oxidation? Oxidation is loss of electrons. Oxidation क्या है? Loss of electrons. अब कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकती है? That is OH negative ion. ठीक है, OH negative ions से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं. OH negative ions will lose electron to form OH plus electron. ठीक, बट ये जो OH है ये कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर एंड ऑक्सीजन जो है ये फॉर्म कर देंगे. ठीक है, सो OH will further, it will form water and O2. So here I can balance this equation. 4OH की प्रोडक्शन के लिए 4OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. 4OH will give rise to what? Water molecules. How many water molecules? 2 water molecules. ठीक है, प्लस O2 molecule. ये इसी OH का आगे फर्दर रिएक्शन है. ये जो 4OH जो है वो हमारे पास आ गया. ठीक है, एंड एट cathode what will happen? A reduction will take place. At cathode reduction will take place, and what is reduction? Reduction is what? Gaining of electrons. So H positive plus electron, or simply 2H positive plus electrons give rise to what? H2 gas. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस है वो फॉर्म करेगा. ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन की रिक्वायरमेंट थी हमें. 4 हाइड्रोक्सिल आयन की रिक्वायरमेंट के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेके चलना पड़ेगा. 4 वाटर मॉलिक्यूल से आ रहे हैं 4H पॉजिटिव एंड 4OH नेगेटिव आयन. 4OH नेगेटिव आयन यहाँ पे यूज हो गए और यहाँ पे भी मैंने ये 4H पॉजिटिव लिख दिया. 4 इलेक्ट्रॉन्स 2H2 गैस मॉलिक्यूल है ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो ओवरऑल अगर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं अब, तो अब देख सकते हो, देखो ये 4OH यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, कंज्यूम हो गए, कैंसल आउट हो जाएंगे. 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, कंज्यूम हो गए. ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं. वी हैव 4 वाटर मॉलिक्यूल्स की जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुई तो हमारे पास बना 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, in this way the electrolysis of water will take place, and these are the products of electrolysis of water. Which gas is being liberated at anode? Anode पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो रही है. So these are the products of electrolysis of water. Students, let us discuss some numericals based upon Faraday's laws of electrolysis. So let's start with first question, and first question is a solution of copper sulfate. A solution of copper sulfate is electrolyzed. So, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere with a current of 1.5 ampere. Find
the amount of copper, find the amount of copper deposited at cathode. Find the amount of copper deposited at cathode. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डेफिनेटली कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या फॉर्म करेगा, कॉपर सॉलिड जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे 1 मोल का अगर हम डाटा लेके चले तो यहाँ पे कितना चार्ज है वो रिक्वायर्ड है, 2 इंटू 96500 कूलम जो है 1 फैरेड चार्ज, यहाँ पे 2 फैरेड चार्ज जो वो रिक्वायर्ड है, 2 इंटू 96500 कूलम, सिंस 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 कूलम, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 फैरेड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 96500 कूलम। अगर इतने कूलम चार्ज है तो कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ करंट और क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सो करंट कितना है, 1.5 एम्पियर है, टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितनी है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मीन्स व्हाट, 600 सेकेंड्स। तो यहां से हम चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सो चार्ज Q इज इक्वल टू I 1.5 इंटू टी 600, सो ये आ जाएगा आपके पास 900 कूलम। ठीक है, कितने कूलम चार्ज है वो पास किया, 900 कूलम चार्ज है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, नाउ 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। ठीक है, देन 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट कॉपर इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। ठीक है, देन अब कितने कूलम, कितना चार्ज हमारे पास आ रखा है, 900 कूलम, 900 कूलम चार्ज will deposit copper is equal to कितना आ जाएगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900 कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.296। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 0.296 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यहाँ से आपको पता चलेगा कितने फैरेड जो है वो चार्ज जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ पे 2 फैरेड मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम जो है वो चार्ज रिक्वायर्ड है यहाँ पे टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर दैट इज हैविंग मास 63.5 ग्राम। ठीक है, सो करंट कितने एम्पियर था, स्ट्रेंथ कितनी है करंट की, टाइम कितने ड्यूरेशन तक पास किया, चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला लगाया, I 1.5 एम्पियर है, 600 है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, कूलम। So 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। 1 कूलम कितना कॉपर जो डिपॉजिट करेगा, डिवाइड कर दोगे 63.5 को 2 into 96500 से, 900 कूलम चार्ज है वो कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा इज इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाय 2 into 96500 into 900। ठीक है, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 0.296 ग्राम।
ठीक है, तो इतने ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का डिस्कस कर लेते हैं। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कूलम्स are required to deposit 54 gram of aluminium if the electrode direction is see the electrode direction Al3 positive plus 3 electrons give rise to Al solid. ठीक है, this is the electrode direction. See, the electrode direction is this: Al3 positive plus 3 electrons give rise to aluminium solid. Now here you can see how much charge is required for the deposition of 27 gram of aluminium, 3 into 96500 कूलम। अगर 3 into 96500 कूलम चार्ज है तो वो कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है? 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो वो डिपॉजिट कर रहा है। ओके, नाउ 27 gram of aluminium requires charge, or for the deposition of 27 gram of aluminium, charge required is equal to 3 into 96500 कूलम। ठीक है, आगे for the deposition of 1 gram of aluminium, charge required is equal to 3 into 96500 divided by 27। ठीक है, 1 ग्राम की डिपोजिशन के लिए। ठीक है, अगर ये 27 ग्राम यहाँ पे आ रहा है, इंटू 1 ग्राम आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 into 96500 कूलम जो वो आ जाएगा। ओके, 3 into 96500 डिवाइड बाय 27 आ जाएगा इसके केस में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the charge required for the deposition of 54 gram of aluminium. Next is for the deposition of 54 gram of aluminium, 54 gram of aluminium, charge required is okay. See what you have to do: 3 into 96500 divided by 27 into 54। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 to the 6 and 600 600 6 5 3 carry 9 3 yes
579,000 coulomb. This much charge is required for the deposition of 54 gram of aluminium. ठीक है, 54 this much charge is required for the deposition of 54 gram of aluminium. This is 5,79,000 coulomb. ठीक है, so in this way you will solve such kind of numericals. अब यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन भी पूछी जा सकती है कि कितने ड्यूरेशन बाद जो वो इतने ग्राम एल्यूमिनियम जो वो डिपॉजिट होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट the amount of silver. Calculate the amount of silver deposited when a current of 2 ampere is passed through a solution a silver nitrate solution AgNO3 solution for 15 minutes. ठीक है, कितनी ड्यूरेशन के लिए पास किया है? 15 मिनट्स के लिए पास किया है. ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर का जो एटॉमिक वेट है वो 108 लेके चलोगे आप. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं. इलेक्ट्रोड डायरेक्शन लिख लेते हैं. Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Ag सॉकेट. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसके बाद देखो 1 फैरेड और 96500 कूलम अगर चार्ज है तो क्या डिपॉजिट करेगा? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर जो है वो डिपॉजिट करेगा. नाउ सी करंट देखो कितना पास किया है. करंट इज इक्वल टू व्हाट? 2 एम्पियर है. एंड ड्यूरेशन जो है टाइम कितना है यहाँ पे? 15 मिनट्स है. 15 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 900 सेकेंड्स आ जाएंगे. ठीक है, नाउ Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी. Here Q इज इक्वल टू I की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? I की वैल्यू थी 2 एंड T टाइम है कितना? 900 सेकेंड. Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1800 कूलम. ठीक है, अब नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. 96500 coulomb charge will deposit silver is equal to 108 gram. ठीक है, 1 coulomb charge will deposit silver is equal to कितना आ जाएगा? 108 upon 96500 coulomb and 1800 coulomb charge will deposit silver is equal to कितना आ जाएगा? 108 upon 96500 into 1800. ठीक है, कट जाएगा. बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो. लेट्स सी सॉल्व करने के बाद जो है वो कितना आंसर आ रहा है. सो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपके पास दैट विल बी 2.014 ग्राम. तो इतने ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होगा. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है. इजिली जो है वो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड की कितना सिल्वर जो डिपॉजिट होगा व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट्स. तो
तो इलेक्ट्रोट्रैक्शन हमने लिख लिया डिपोजिशन के लिए Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन की प्राइस टू Ag सॉलिड। कितना चार्ज यहाँ पे इन्वॉल्व है, 1 फैराड जो है वो इन्वॉल्व है और 96500 कूलम इन्वॉल्व है। कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होगा। करंट 2 एम्पियर है, टाइम 15 मिनट्स है, कितने सेकंड्स हो गए, 900 सेकंड्स। चार्ज Q इक्वल टू IT 2 into 900 1800 कूलम आ गया। ठीक है, अब 96500 कूलम जो वो कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कर रहा है, 108 ग्राम। 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 96500 से डिवाइड कर दो 108 को, और 1800 कूलम जो वो कितना डिपॉजिट करेगा, 1800 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 108 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1800 सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है, 2.014 ग्राम। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है।